Hello everyone, welcome back to PrepCore, your go-to channel for exam prep made easy. You're now watching the fourth video of our Basic Econometrics series. I truly hope these videos are helping you build a strong foundation and making econometrics less intimidating. Today, we will be talking about R squared, adjusted R squared, and the mystery behind the strange looking -1 we often see in formulas. Ready to decode it? Let's begin. सबसे पहले बात करते हैं आर स्क्वायर्ड की, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं. आर स्क्वायर्ड measures how well a regression model explains the variation in the dependent variable y. It tells us what percentage of the total variation in y is explained by the independent variable. R square measures the proportion of total sum of squares that the model explains through the explained sum of squares. Now, if you haven't already watched the part 3 of this series, I recommend you watch that before you continue watching this one. I'll attach the link below in the description box. Let's continue. R square को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन. एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इज नथिंग बट योर एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स एंड टोटल वेरिएशन इज नथिंग बट योर टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स. सो आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है. इफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है द मॉडल एक्सप्लेन्स all of the variation in y. अगर आपके r square is equals to 0 है तो मतलब model explains none of the variation. If r square is close to 1, it means it is a better fit but not always the best model. And if your r square is close to 0, this means the model has little explanatory power. Simple words में अगर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.80 है तो इसका मतलब है 80% वेरिएशन मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है, बचा हुआ 20% अनएक्सप्लेन्ड या एरर है. अब मल्टीपल रिग्रेशन में जब हम एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐड करते हैं तो आर स्क्वायर कभी भी डिक्रीज नहीं होता. इवन यूजलेस वेरिएबल्स आर स्क्वायर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इवन इफ दे डोंट हेल्प द मॉडल. इसीलिए आर स्क्वायर अलोन कैन बी मिसलीडिंग. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड. एडजस्टेड आर स्क्वायर मेजर करता है दैट मॉडल फिट इज इम्प्रूविंग आफ्टर एडजस्टिंग फॉर नंबर ऑफ predictors. So your adjusted R square fixes this issue by adjusting for the number of predictors, ensuring that only meaningful variables improve the model. Now, how do you calculate this adjusted R square? The formula is on the screen. यहाँ पे your n is the total number of observations or the data points. K is the number of independent variables that are your predictors, because now we are talking about multiple regression, so we will have more than one independent variable. And your R square is the regular coefficient of determination. So the important point here is that the adjusted square can decrease if new variables don't add real value. एडजस्टेड आर स्क्वायर पनिश करता है अगर आप बस वेरिएबल्स ऐड कर रहे हो बिना मॉडल इंप्रूव किए. सो whenever you're adding useful variables, the value of adjusted R square increases, and if you're adding useless variables, the adjusted R square decreases. इसीलिए adjusted R square is a better judge of model quality in multiple regression. अब चलते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट पर कि फॉर्मूला में -1 या k-1 क्यों आता है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कितने वैल्यूज फ्रीली वेरी कर सकते हैं बिना किसी कॉन्स्ट्रेंट के. मतलब अगर आप कुछ वैल्यूज के ऊपर कोई कंडीशन लगाते हो, जैसे उनका मीन फिक्स कर देते हो, तो एक वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है क्योंकि बाकी सबको एडजस्ट करना पड़ता है उस कंडीशन के हिसाब से. सो द n-1 इज योर टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मान लीजिए आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे x1, x2, x3 टिल xn.
अगर आप इनका मीन कैलकुलेट करते हो तो एक कॉन्स्ट्रेंट लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप n-1 वैल्यूज रैंडमली चूज कर लो तो लास्ट वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी सो दैट द मीन रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए जब हम टोटल वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं जैसे टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स तो हम n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं क्योंकि एक फ्रीडम मीन एस्टिमेट करने में चली जाती है। इजी राइट? नाउ द n-k-1 is your residual degrees of freedom। अब बात करते हैं रिग्रेशन मॉडल की जहां आप के प्रेडिक्टर्स यूज कर रहे हो जैसे x1, x2, x3 टिल xk और एक इंटरसेप्ट विच इज बीटा नॉट भी एस्टिमेट करते हैं। तो टोटल n डेटा पॉइंट्स हैं और आप k+1 पैरामीटर्स एस्टिमेट कर रहे हो। हर पैरामीटर एस्टिमेट करने पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम चली जाती है तो बचा क्या? n minus k+1 which is nothing but n minus k-1। यही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज होती हैं जब हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर्स कैलकुलेट करते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं रिग्रेशन के अंदर। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, जितनी पैरामीटर्स आप एस्टिमेट करते हो उतनी फ्रीडम स्पेंड होती है, जो फ्रीडम बची है वही यूज होती है मॉडल एक्यूरेसी, एरर एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए। अब बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ -1। फर्स्ट, इट करेक्ट्स द बायस। एडजस्टेड आर स्क्वायर के फॉर्मूला में जो -1 और -k-1 आता है वो इस बायस को करेक्ट करता है। ये चेक करता है क्या नया वेरिएबल एक्चुअली हेल्प कर रहा है या सिर्फ शो ऑफ कर रहा है। अगर वेरिएबल यूजफुल है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ जाता है और अगर वेरिएबल बेकार है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर कम हो जाता है। So that -1 helps adjusted R square stay honest and realistic. Second, the degrees of freedom of adjustment. आप जब रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट करते हो जैसे इंटरसेप्ट, स्लोप एक्सेट्रा तो आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्पेंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स है मतलब आपका n इज इक्वल्स टू 10 और आप एक वेरिएबल का स्लोप और एक इंटरसेप्ट एस्टिमेट करते हो, that's what the -1 captures. It ensures we don't overestimate the model fit by pretending we didn't spend anything. Third is your model complexity penalty. रिग्रेशन मॉडल्स में जब आप ज्यादा वेरिएबल्स ऐड करते हो तो रिस्क होता है ओवरफिटिंग का, यानी मॉडल डेटा के नॉइस को भी फिट कर रहा है। -1 acts as a penalty term in adjusted R square. It says हर न्यू वेरिएबल के लिए प्रूव योर वर्थ। अगर वेरिएबल मॉडल इम्प्रूव नहीं करता तो एडजस्टेड आर स्क्वायर पनिश करेगा बाय ड्रॉपिंग इन वैल्यू। सो दिस -1 डिस्करेजेस अननेसेसरी complexity. Let's make it super easy with a real world example predicting the house prices. मान लीजिए आप एक रिग्रेशन मॉडल बना रहे हैं जो प्रिडिक्ट कर रहा है हाउस प्राइसेस, सो आर y इन दिस केस इज हाउस प्राइसेस, और आप अलग अलग फीचर्स ट्राई कर रहे हैं जैसे स्क्वायर फुटेज, बेडरूम्स, जिप कोड एक्सेट्रा। मॉडल 1 यूजिंग जस्ट द स्क्वायर फुटेज। सबसे पहले आप सिर्फ स्क्वायर फुटेज को प्रिडिक्टर बनाते हैं एंड आपकी इस केस में आर स्क्वायर की वैल्यू इज 0.75, मतलब 75% वेरिएशन इन हाउस प्राइजेस इज एक्सप्लेन्ड बाय द स्क्वायर फुटेज। एडजस्टेड आर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 0.75 क्योंकि एक ही वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल्स सेम है, दोनों वैल्यूज सेम है। मॉडल का फिट डिसेंट है। मॉडल 2, adding the number of bedrooms which is x2 now.
अब आप नंबर ऑफ बेडरूम्स भी ऐड करते हैं मॉडल में. सो योर न्यू आर स्क्वायर इज 0.78 एंड द एडजस्टेड आर स्क्वायर इज 0.77. आर स्क्वायर बढ़ा और एडजस्टेड आर स्क्वायर भी बढ़ा, यानी न्यू वेरिएबल ने मॉडल की प्रिडिक्टिव पावर इंप्रूव की, विच इज अ गुड चॉइस. Next we have model 3. Now we are adding zip code which is our x3. अब आप zip code ऐड करते हैं, लेकिन इस डेटा सेट में zip codes रैंडम है, हाउस प्राइसेस से रिलेटेड नहीं है. So your new R square is 0.79 and your adjusted R square is 0.75. R square तो फिर भी इंक्रीज हुआ क्योंकि R square कभी डिक्रीज नहीं होता, पर adjusted R square गिर गया क्योंकि नया वेरिएबल यूजफुल नहीं था. यही रीजन है एडजस्टेड आर स्क्वायर को यूज करना क्यों जरूरी है. सो आर स्क्वायर टेल्स अस हाउ मच ऑफ द वेरिएशन इन y is explained, but it can be misleading. Adjusted R square helps decide if adding new variables actually improves the model. And that's it. Now you know what R squared and adjusted R squared really mean and why that little -1 is such a big deal in statistics. If this helped, do give it a thumbs up and subscribe for more intuitive content in economics and stats. Comment below if you want a live example or graph breakdown. I'm here to help. See you in the next one.